R7 নেটওয়ার্ক। আর আপনারা দেখছেন R7 বাংলা, বাংলার কথা বাঙালির মুখে। টিএমসির সঙ্গে, কিন্তু তার সঙ্গেই এদের লুকিয়ে থাকা বন্ধুদের থেকেও সাবধানে থাকতে হবে। খেলার মধ্যে ম্যাচ ফিক্সিং হয়ে থাকে, কিন্তু এবার লেফট, কংগ্রেস আর তৃণমূল মিলে রাজনীতিতে পর্দার আড়ালে ম্যাচ ফিক্সিং করছে। দিল্লিতে লেফট, কংগ্রেস আর তৃণমূল এরা তিনজনে একসঙ্গে বন্ধ ঘরে দেখা করে, গল্প করে, একসঙ্গে বসে রণনীতি ঠিক করে। কেরলে কংগ্রেস আর লেফট মিলে ডিল করে রেখেছে, 5 বছর তুমি লুট করো, 5 বছর আমরা লুট করব। কিন্তু বাংলাতে লেফট আর তৃণমূল ভোট দেওয়ার মানে হলো এই পর্দার আড়ালে যে খেলা চলছে সেই খেলায় অংশ নেওয়া। আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন চাকরি, চাকরি, নারী সুরক্ষা, নারী সুরক্ষা, কৃষক সুরক্ষা, কৃষক সুরক্ষা, বিকাশ, বিকাশ, সুশাসন, সুশাসন, সোনার বাংলা, সোনার বাংলা, বিজেপি, 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 বিজেপি। এই বিশ্বাসের সঙ্গে আপনাদের সবাইকে আরো একবার আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। কলকাতার বোনেদের আর ভাইয়েদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি। পশ্চিম বাংলার দুর্গা পূজা ভারতের এই পূর্ণতাকে এক নতুন ঔজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে, নতুন রঙে রাঙিয়েছে, নতুন শৃঙ্গার দিয়েছে। এটা বাংলার জাগ্রত চেতনা, বাংলার আধ্যাত্মিকতা, বাংলার ঐতিহাসিকতার প্রভাব। পবিত্র ষষ্ঠীর এই পুণ্য লগ্নে আমি বাংলার পবিত্র পুণ্য ভূমিকে আজ সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রী অরবিন্দ, বাবা লোকনাথ, শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, মা আনন্দময়ী, এইরকম অসংখ্য অসংখ্য ঋষি পরম্পরার মহানুভবদের, মনীষীদের, তপস্বীদের আজ আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। ভারত মাতার আশীর্বাদ নিয়ে সোনার বাংলার সংকল্প অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এখানে আগত এক একজন ব্যক্তি, আমাদের মায়েরা, আমাদের বোনেরা
আমাদের মেয়েরা, বাংলার যুবকেরা আজ বাংলায় আসল পরিবর্তনের জন্য এসেছে। বিশ্বাস বাংলার উন্নয়নের, বিশ্বাস বাংলার পরিস্থিতি বদলাবার, বিশ্বাস বাংলার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, উদ্যোগ বৃদ্ধি করা, বিশ্বাস বাংলার পুনর্নির্মাণের, বিশ্বাস বাংলার সংস্কৃতি আর এখানকার পরম্পরা রক্ষা করা। কেন্দ্রে আমাদের যে সরকার রয়েছে তারা কলকাতাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য অনেক প্রয়াস করেছে। যখন কলকাতায় বিকাশের ডাবল ইঞ্জিন লেগে যাবে তখন সব সমস্যা, সব বাধা শেষ হয়ে যাবে। বিজেপি সরকার গঠনের পরে কলকাতায় বস্তিতে যারা বসবাস করেন তারা পাকা বাড়ি পাবেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাবেন। হকার আর ঠেলাওয়ালা আমাদের ভাই বোনদেরও বিজেপি সরকার এলে পরে স্বনিধি যোজনার সুবিধা যত দ্রুত সম্ভব পাইয়ে দেওয়া হবে। বন্ধুরা, স্বাধীনতার নাম করে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল। স্বাধীনতার পরে কয়েক বছর কাজ হয়েছে, কিন্তু তারপর বাংলার মধ্যে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করলো। এই রাজনীতিকে বামপন্থীরা এগিয়ে নিয়ে গেছে, আরো এগিয়ে নিয়ে গেছে। আর বামপন্থীরা তো স্লোগান দিয়েছে, আপনাদের মনে আছে, বাংলার মানুষের মনে আছে, বামপন্থীরা কি বলতো? কংগ্রেসের কালো হাত, কংগ্রেসের কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। এই সব স্লোগানকে ভিত্তি করে ক্ষমতায় এসে অন্তত 3 দশক ধরে ক্ষমতা ভোগ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। मोदी 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 देश की चौकीदार मोदी जी स्वागतम, देश की चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। काफिर पुण्य पवित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम, देश की चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, সম্মানীয় মান্যবর, আমাদের পরম পরম সম্মানীয় শ্রদ্ধাভাজন শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিজি। মোদিজিকে সবাই মিলে আমরা আসুন এই ঐতিহাসিক বিপ্লবের মাটি, স্বাধীনতা আন্দোলনের তীর্থভূমি, বঙ্গোপসাগরের উপকূল কাঁথির মাটি থেকে আমরা সবাই মিলে বলি, सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी स्वागतम। नरेंद्र मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारी साथ है।
বাংলার আসল পরিবর্তন আনবে কে? ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়বে কে? আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সম্মানীয় অনুপ চক্রবর্তী মহোদয় এবং বর্ষিয়ান সাংসদ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্মানীয় শিশির অধিকারী মহোদয় কোভিড বিধি মেনে দূর থেকে নমস্কার জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। বন্দে মাতরম, মোদিজি জিন্দাবাদ, গাঁধীর মাটিতে মোদিজি স্বাগতম। मोदी जी आप संघर्ष करो, बंगाल आपके साथ है। इस बार 200 पार, 200 पार, इस बार 200 पार, 200 पार। আমরা অনুরোধ করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সকলের নেতা এক মিনিটে স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন। অনুপ বিশ্ববরেণ্য নেতৃত্ব, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সবার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, এগিয়ে যাওয়া প্রতীক আদরণীয় মোদিজিকে ঐতিহাসিক কাঁথি শহরে আমরা সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। সারা ভারতবর্ষ তার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে। বাংলা আমরা মোদিজির হাতে তুলে দেব। মোদিজি সোনার বাংলা করবেন, এই আহ্বান জানিয়ে সবাইকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, মোদিজিকে প্রণাম জ্ঞাপন করছি। এবারে আদরণীয় মোদিজি, বিশ্ববরেণ্য নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি, তার প্রধানমন্ত্রী, তিনি সম্ভাষণ জানাবেন। তাকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, আবেদন করছি, তিনি বচন রাখবেন। ভারত মাতা কি भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। शक्तिपीठ देवी बरगाभीमा माता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। क्रांति की धरती मेदिनीपुर, जहां शायद ही कोई गांव हो जहां से स्वतंत्रता सेनानी न निकला हो, इस धरती को मैं आदरपूर्वक वंदन करता हूं। संथाल आंदोलन हो, चुवाड़ आंदोलन हो, ताम्रलिप्त जातीय सरकार का गठन हो, हर क्रांति के समय मेदिनीपुर अग्रणी रहा है, लीडर रहा है। देश प्राण वीरेंद्रनाथ शासमल, मां मातंगिनी हाजरा, शहीद खुदीराम बोस, क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो, सुशील कुमार धारा जैसे अनगिनत अनेक क्रांतिवीर इस धरती ने दिए हैं। भाई और बहनों, आजादी के लड़ने वाले हर नायक नायिकाओं को सम्मान देने के लिए पूरा देश आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल के उत्सव में पश्चिम बंगाल का विशेष महत्व है।
आजादी की लड़ाई में दिए गए हर योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्पों का भी अहम केंद्र है। आज जो युवा 25 साल की उम्र के हैं, जो 25 साल के हैं, और वो युवा जो आज इस चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार अपने पवित्र मत का योगदान देने वाले हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अहम है। यहां के युवाओं के सामने आने वाले 25 साल के पश्चिम बंगाल के निर्माण का दायित्व है और इसलिए আসল परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहां सुन रहा है। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है। 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। साथियों, दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही हैं। दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। यहां केंद्र सरकार ने जो राहत भेजी थी वो भाईपो विंडो में फंस गई। दीदी, ओ दीदी, दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी। गरीब का चावल किसने लूटा। अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल यहाँ का बच्चा बच्चा, दीदी यहाँ का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल
दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा आपना के दौरजा देखाबे। लोकेरा आपना के दौरजा देखाबे। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पूरनचंद्र दास, मदन घड़ाई, शेख लियाकत अली, वासुदेव माइली और गोकुल चंद्र जना, मेदिनीपुर की ऐसी अनेक संतानों को तृणमूल ने शहीद किया है। इसकी सजा भाजपा सरकार तो देगी ही, लेकिन उससे पहले पोलिंग बूथ पर हमारी माताएं बहनें आपके कुशासन को सजा देने का तय करके बैठी है। আমাদের मायरा पाए हेंटे बेरियास में माताएं बहनें टीएमसी को इस चुनाव में सजा देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल चुकी है। मैं जहां देख रहा हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये मैदान छोटा पड़ गया। मैं हेलीपैड पे देख रहा था, हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े हैं। ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। महिलाओं ने तय कर दिया है टीएमसीआर का खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे, विकास आरंभ होवे। भाई और बहनों, बंगाल का विकास, यहां के लोगों का विकास, ये बीजेपी का कमिटमेंट है। ये बीजेपी का संकल्प है। बंगाल का उज्जवल भविष्य, इसके लिए हम जी जान से जुट जाएंगे, ये वादा करने में आया हूं। भाइयों बहनों, बांग्ला चाय शिक्षा शिल्पो কর্মসংস্থান, বাংলা চায় নারী সুরক্ষা, বাংলা চায় কৃষক সম্মান, বাংলা চায় কর্মচারী সম্মান, বাংলা চায় बीजेपी सरकार, बांग्ला चाय, बांग्ला चाय, बांग्ला चाय, बांग्लाय दरकार बीजेपी सरकार, बांग्लाय दरकार बीजेपी सरकार। बीजेपी का संकल्प बंगाल के गरीब से गरीब तक, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने का संकल्प है। बीजेपी हर स्कीम को स्कैम से मुक्त करेगी, कट मशीन पर रोक लगाएगी, कट कमीशन पर भी रोक लगाएगी। बीजेपी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा लाभ देने के लिए
डीबीटी देने के लिए कदम उठाएगी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई तोलाबाज नहीं। साथियों, ये बीजेपी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसकी हर योजना के केंद्र में नारी शक्ति है, माताएं, बहन, बेटियां हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार ने बहनों के लिए शौचालय, इज्जत घर बनवाए। बीजेपी की सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिया, एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, पक्के घर की रजिस्ट्री बहनों के नाम की। कोरोना काल में सैकड़ों करोड़ रुपए की सीधी मदद बहनों के जनधन खातों में पहुंचाई। अब बीजेपी की केंद्र सरकार पूरे देश में बहनों की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए घर घर जल पहुंचाने की योजना चला रही है। लेकिन तृणमूल की सरकार ने यहां ये भी नहीं होने दिया। टीएमसी सरकार को आपकी परेशानियों की चिंता नहीं है, आपकी मुश्किलों की चिंता नहीं है। साथियों, बहनों, बेटियों के लिए जो काम केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, उसको डबल इंजन की सरकार कई गुना बढ़ाने वाली है। बंगाल में बीजेपी का संकल्प पत्र भी सामने आ चुका है। मैं बंगाल बीजेपी के सभी नेताओं को, बंगाल बीजेपी की टीम को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया है, जनता की आवाज को सुन करके बनाया है, लोगों की मुसीबतों को समझ करके बनाया है, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए बनाया है। बंगाल के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां के नौजवानों, यहां की महिलाएं, यहां के किसानों के विकास को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र बंगाल बीजेपी ने तैयार किया है। भाइयों और बहनों, मेदिनीपुर भारत की कृषि आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा केंद्र है। खेती में फसलों को लेकर यहां नए नए प्रयोग हो रहे हैं। यहां अनेक जगह हमारे किसान प्रॉन फार्मिंग में जुटे हैं, लेकिन दीदी की सरकार ने यहां के किसानों को आधुनिक मंडी की सुविधा, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की सुविधा से भी वंचित रखा है। अब ये स्थिति नहीं रहेगी। भाजपा लोकल के लिए वोकल है, लोकल के लिए वोकल, ये हमारा कमिटमेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले के अहम उत्पादों को विकसित करने के लिए काम कर रही है। यहां के काजू किसान हो, पान किसान हो, जूट किसान हो, आलू और नारियल किसान हो, हर किसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ मिलेगा। जूट किसानों के लिए तो केंद्र सरकार निरंतर कदम उठा रही है। हमने जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक के बाद अधिक कदम उठाए, इसका सीधा लाभ एक जूट किसान को होने वाला है। जूट किसान का जय जयकार हिंदुस्तान के हर कोने में होने वाला है।
गेहूं की पैकेजिंग 100% जूट से हो रही है। प्लास्टिक की पैकेजिंग की जगह अब जूट के पैकेज देश में उपयोग हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, बंगाल का किसान भूल नहीं सकता कि कैसे दीदी ने उसके साथ निर्ममता दिखाई है। दीदी ने आपको पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। ये पैसे टीएमसी सरकार को किसानों तक नहीं पहुंचने देना था। ये पैसे दिल्ली से भारत सरकार किसानों के खाते में जमा करना चाहती थी, लेकिन दीदी किसानों से दुश्मनी लेके बैठ गई। किसानों के खाते में भारत सरकार के पैसे नहीं जाने दिए। भाइयों बहनों, बंगाल के किसान ये मोदी के शब्द लिख के रखिए, 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और यहां के किसानों के हक के 3 साल के पैसे भी उन खातों में जमा करके रहूंगा मैं। हर किसान सरकार बनते ही बंगाल के हर किसान के खाते में पिछले 3 साल के जो पैसे दीदी ने नहीं देने दिया, मैं आपको दे के रहूंगा। भाइयों बहनों, मैं वादा पूरा करके रहूंगा। भूमिहीन किसानों, मछुआरे साथियों के लिए भी बंगाल बीजेपी ने हजारों रुपए की सीधी सहायता देने का संकल्प किया है। यही डबल इंजन की सरकार की ताकत है जो अब बंगाल में दिखाई देगी। भाइयों बहनों, भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल की तटीय अर्थव्यवस्था को तृणमूल की तोलाबाज और सिंडिकेट की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। हल्दिया की क्या स्थिति बनाकर रख दी है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। कहां तो मेदिनीपुर को हल्दिया की तर्ज पर विकसित करना था और कहां हल्दिया के गौरव को सिंडिकेट ने तहस नहस कर दिया। अब इस समुद्री किनारे को, हमारे मछुआरों को कट, कमीशन और टोलाबाजी के कल्चर से मुक्त करने का समय आ गया है। आपके एक वोट की ताकत है, आपके एक वोट की ताकत है। ये कट कल्चर, कमीशन कल्चर, ये टोलाबाजी रातों रात खत्म हो जाएंगे। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा ब्लू इकोनॉमी पर बल दे रही है। ऐसा विकास जिसमें समुद्री किनारे बसे हर परिवार की, हर मछुआरे साथी की भागीदारी हो। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले ही हल्दिया पोर्ट के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गई थी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हल्दिया को नदी जल मार्गों से कनेक्ट कर रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टील प्लांट्स और अन्य उद्योगों के लिए जो आयात और निर्यात होगा, उसका हल्दिया अहम सेंटर बनने वाला है।
सिर्फ हल्दिया ही नहीं, बल्कि डबल इंजन की सरकार इस पूरे क्षेत्र को, मेदिनीपुर को पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लाभ से जोड़ रही है। केंद्र सरकार पेटुआ घाट फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण के लिए भी कदम उठा रही है। ये सारे प्रयास यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। भाई और बहनों, आपके पास जो ये विस्तृत समुद्री किनारा है, इसमें टूरिज्म आधारित रोजगार की अपार संभावना है। यहां तीर्थाटन से लेकर क्रूज टूरिज्म की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आपके पास दीघा बीच जैसी एक अनमोल प्राकृतिक विरासत है, बहुत बड़ी ताकत है। केंद्र सरकार अलग अलग सर्किट के माध्यम से देश में टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। अब डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी और इसका लाभ मेदिनीपुर को भी होने वाला है। यहां के हर परिवार को होने वाला है, हर मछुआरे को होने वाला है, हर किसान को होने वाला है, हर माता बहन को होने वाला है, हर नौजवान को होने वाला है। भाई और बहनों, जिस बंगाल ने पूरे भारत को पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बोहिरा गोतो की बात कर रही है। बोहरी गोतो, आय भूमि बंकिम बाबुर, रवि ठाकुरेर, सुभाष बोसेर, मातंगिनी हाजरार, श्यामा प्रसाद मुखर्जीर बंगभूमि और भारत भूमि, আমরা সবাই এই ভারত ভূমির সন্তান। এই ভূমিতে কোন ভারতবাসী বহিরাগত নয়। বলুন বলুন भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दीदी, ओ दीदी, এখানে কোন ভারতবাসী বহিরাগত নয়, সব ভারত মাতার সন্তান। साथियों, जिस बंगाल से गुरुदेव ने हर भारतवासी को एक माला में पिरोया, और इसी धरती से गुरुदेव ने कहा, और जो हम रोज कहते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। उस बंगाल में गुरुदेव की धरती से, उस बंगाल में दीदी बहिरागोतो की बात कर रही हो। टूरिस्ट कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। दीदी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को, ये गुरुदेव की मिट्टी का आवाज है, किसी को बहिरा गोता नहीं मानते, बहिरा गोतो नहीं मानते। बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं,
उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी। यही बंगाल की भूमि के संतान की। साथियों, लोकतंत्र में हार जीत जनता के लिए किए गए सेवा कार्यों से तय होती है। आप सभी ने ममता दीदी को 10 साल काम करने का मौका दिया। आपके बीच आकर ममता दीदी की जिम्मेवारी थी वो आकर के 10 साल के काम का हिसाब दे, पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे। ये चुनाव में उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन दीदी आपको हिसाब नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई हिसाब मांगे तो उसको गालियां दे रही है, उन पर गुस्सा कर रही है। अरे जरा अपने पड़ोस में देखिए, असम में भी चुनाव चल रहा है। असम में एनडीए की सरकार है। इन 5 वर्षों में वहां तेजी से विकास के काम हुए हैं। पहले असम से लगातार हिंसा की खबरें आती थी, तनाव की खबरें आती थी। इन 5 वर्षों में असम में शांति आई है, स्थिरता आई है। जिन्होंने अलगाववाद का रास्ता चुना था वो मुख्य धारा में लौट आए हैं। जबकि दीदी के राज में यहां हिंसा, बम, बंदूक, उसी के धमाके सुनाई दे रहे हैं, उसी की खबरें आती हैं। पूरे पूरे घर उड़ जाते हैं धमाकों से। घर के घर, छत की छत उड़ रही है और दीदी सरकार सिर्फ देख रही है। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना है। बंगाल को शांति चाहिए, बंगाल को स्थिरता चाहिए, बंगाल को बम, बंदूकों और हिंसा से मुक्ति चाहिए। और ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है मेरे भाइयों बहनों, और बीजेपी करके दिखाएगी। दीदी, ओ दीदी, मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है, वो सुनती नहीं किसी का। दीदी, ओ दीदी, आपने खेला खेलें, आपने खेला खेलें, আমরা সেবা করব, আমরা সেবা করব। খেলা নয়, সেবা হবে সেবা। বিজেপির একটাই মন্ত্র, বিজেপির একটাই মন্ত্র, গরিবের রোজগার, গরিবের বাড়ি, गरीबेर सम्मान। साथियों, दीदी इस बात से बौखलाई हुई है कि बंगाल के लोग उनका खेला समझ गए हैं। इसलिए तृणमूल वाले आजकल झूठ और प्रपंच पर उतर आए हैं। आप यहां देख रहे हैं कैसे नंदीग्राम को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। दीदी, आपको नंदीग्राम ने बहुत कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया। अब आप नंदीग्राम के लोगों को बदनाम कर रहे हो, आप नंदीग्राम के लोगों पर झूठे आरोप लगा रही हो, आप नंदीग्राम के लोगों को पूरे हिंदुस्तान भर में बदनाम कर रही हो। ये नंदीग्राम के लोग, दीदी, ये नंदीग्राम के लोग ये अपमान नहीं सहेंगे और दीदी तुम्हारा जवाब मांगेंगे। नंदीग्राम के स्वाभिमान लोग आपको इस अपमान की सजा देंगे और इस चुनाव में जरूर देंगे। भाई और बहनों, तृणमूल का सरोकार है कट, कमीशन, तोलाबाजी और सिंडिकेट के अंधकार से।
तृणमूल का सरोकार है अराजकता का अंधकार से। तृणमूल का सरोकार है हिंसा और अत्याचार के अंधकार से। दीदी की सरकार ने अंधकार दिया। डबल इंजन की भाजपा सरकार सोनार बांग्ला देगी। हमारा सपना सोनार बांग्ला, हमारा सपना सोनार बांग्ला, हमारा सपना, हमारा सपना, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा सिद्धांत, हमारा सिद्धांत। और इसलिए बार बार बीजेपी सरकार, इसलिए इस बार भी बीजेपी सरकार, इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। आप यहां भारी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए। मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं देख सकता हूं आपकी आंखों में 2 मई का चुनाव नतीजा आपकी आंखों में नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।